ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اگر تھوڑی سی غور فکر کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام کے علاوہ بھی بہت سارے دھرم پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسلام کے علاوہ کوئی مذہب، کوئی دھرم قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اسلامی گھرانے میں پیدا کیا، اور اسلامی گھرانے میں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے انبیاء و رسول آئے، لیکن ہمیں آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجا، اور پھر خیر امت کا لقب دیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ، کہ مومن عورتیں، مومن مرد آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ اچھے کام کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن اگر کسی دوسرے مومن کو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اگر وہ اسے برائی میں دیکھے تو اس کو اس سے روکے، اسے منع کرے، وہ خود بھی نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ برائی کا روکنا اور اچھے کام کا حکم دینا، اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کا لقب دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشہور حدیث ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع، لمبی حدیث۔ تو اس حدیث کے بارے میں بھی 3 شق ہے اس حدیث کے اندر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جب تم اپنے سامنے برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو۔ برائی کی کوئی یہاں پر قید نہیں ہے، کوئی بھی برائی جو اسلام کے خلاف کام ہو رہا ہے، جو انسانیت کے خلاف کام ہو رہا ہے، جو دین کے خلاف کام ہو رہا ہے، جسے برائی کہا جائے تو آپ اس برائی کو ہاتھ سے روکیے۔ اور اس کی طرف محدثین نے اشارہ کیا کہ اس جز کا جو ماننے والا ہے، یا اس جز کا جس کی طرف اشارہ ہے، وہ حاکم وقت کی طرف ہوتا ہے، کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ آپ اگر برائی کو دیکھیں اپنے ہاتھ سے آپ روک نہیں سکتے، وہ طاقت نہیں ہے آپ کے اندر، لیکن حاکم وقت جو دیش کا بادشاہ ہوتا ہے، جو اسٹیٹ کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ اگر چاہے تو اس برائی کو بائیک وقت ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ جیسے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے بہار کے اندر نتیش کمار نے شراب کو روک دیا، پابندی لگا دی، لیکن عام آدمی اگر چاہے تو اس کو نہیں روک سکتا۔ تو اس کا اشارہ حاکم وقت کی طرف ہے، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے بس میں وہ نہیں ہے۔ لیکن جو دوسرا جز ہے حدیث کا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، کہ اگر آپ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو اس کو آپ زبان سے روکے۔ یہ تو سب کوئی کر سکتا ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ کا بھائی بھی کر سکتا ہے، مسجد کا امام بھی کر سکتا ہے، گاؤں کے منڈل بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی آدمی اس کام کو کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں ہمارے اندر بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے کہ ہم برائی کو دیکھتے ہوئے برائی کو نہیں روکتے ہیں، اور دھیرے دھیرے برائیاں آگے بڑھتی جاتی ہے۔ اور تیسری شق اس حدیث کے اندر، اگر کوئی آدمی ایسا ہے
कि जो जबान से भी नहीं रोक सकता तो वो दिल से उसको खराब जाने, और ये सबसे कमजोर तबका है ईमान का। मेरे इस्लामी भाइयों, आज मुआशरे के अंदर इस्लाम नाम जिंदा है लेकिन मुसलमान ढूंढ के नहीं मिलता। मोमिन की बात बहुत दूर की बात है। आज हम अपने घरों के अंदर अपने बच्चे को नमाज नहीं पढ़ा सकते। आज हम अपने घरों के अंदर अपनी बच्ची को नमाज नहीं पढ़ा सकते। हम नमाज पढ़ते, हमारी बीवी नमाज नहीं पढ़ती है। अगर किसी की बीवी नमाज पढ़ती है, उसका शौहर नमाज नहीं पढ़ता है। कहाँ बोले, किस बुराई की तरफ इशारा करे, कौन सी बुराई को रोकने की बात करें? हर बुराई हमारे अंदर है। अभी मैं एक दो बुराई की तरफ इशारा करूंगा आपको। आज इस मुसलमान मुआशरे के अंदर कौन नहीं जानता है सूद हराम है? कौन नहीं जानता है? सबको पता है, सबको पता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमा रिबा। अल्लाह ताला ने बै को जायज करार दिया और सूद को हराम कर दिया। अभी तो हम अगर अच्छी तरह से देखें तो हमारे हर घर के अंदर लोन पाया जाता है। लोन में आप क्या देते हैं? सूद। लोन में हम सूद देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला सदकात को बढ़ाता है और सूद को घटाता है, उसको ख़त्म करता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद खाने वाला, उसका लिखने वाला, उसके गवाही देने वाला, तमाम के ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है। और लानत अल्लाह के रसूल की भेजी हुई लानत का मतलब क्या है कि लानत का मतलब ये होता है कि उसको अल्लाह की रहमत से दूर कर देना। अल्लाह की रहमत से वो आदमी दूर हो जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक धमकी है कि वह ईमान वालो जो अल्लाह को एक मानते हो, रसूल को एक मानते हो, किताबुल्लाह को मुनज़्ज़ल मिनल्लाह मानते हो, अपनी तकदीर की भलाई बुराई पर ईमान रखते हो, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान रखते हो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। और जो बकिया सूद है उसको खाने से तुम छोड़ दो। और अगर तुम ये नहीं करोगे, अगर तुम सूद लेनी देनी कारोबार तुम बंद नहीं करोगे, सूद खाना नहीं छोड़ोगे, सूद पर पैसा लगाना नहीं छोड़ोगे, फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, तो तुम अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह के साथ कौन जंग कर सकता है? किसी के अंदर ये ताकत है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ जंग करे? नहीं। और अभी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि सूद देने वाला आदमी, बैंक का आदमी गांव जाता है, चौक चौराहे में बैठ के सूद देता है। पहले ये सुनते थे हम लोग कि कोई सिबिल या शिविर है, वो चेक किया जाता है सूद देने के लिए कि आप जो सूद लीजिएगा तो वो सूद आप कितने दिन में दे सकते हैं, आपकी आमदनी कितनी है, आप कितना कमा रहे हैं, वो सब आजकल कुछ नहीं देखा जाता है, सूद पे दिया जाता है। और बाज जगहों के बारे में ये भी खबर सुनने के लिए मिलती है कि लोग सूद लेने के लिए अपने भाई से, गांव के किसी आदमी से सूद पर पैसा लेता है। यानी लोन लेने के लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है, वो भी पैसा नहीं है उसके पास। लोन लेने के लिए जो पैसे खर्च होंगे वो भी पैसे नहीं है, तो अब उसके लिए किसी से वो सूद पर पैसा लेते हैं। एक सूद इधर और फिर लोन वाला सूद। और बाद में चल के जो परेशानी आती है दुनियावी एतबार से, तब बहुत सारे आदमी ज़मीन जगह बेच के, डीही बेच के, गाड़ी बेच के
और क्या ना जाने कैसे कैसे तरीके से वो लोन को अदा करने की कोशिश करता है। और उखरूबी तो उसके बारे में कि लानत है, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से धमकी है। तो इसलिए हम लोगों को इस हराम चीज़ से बचना चाहिए। इसमें हमें फ़ायदा नहीं हो सकता, हमारी ज़िंदगी सुधर नहीं सकती, उसमें हमारी ज़िंदगी ख़राब होगी। ये एक बहुत बड़ा जुर्म मुआशरे के अंदर फैल गया, मुसलमान घराने में फैल गया, लेकिन उसको रोकने वाला नहीं। और बैंक वाले तो मौलाना लोगों का हवाला देके भी लोन देते हैं, आपको पता होगा, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं। आप 5 सालों में 2.5 लाख रुपया जमा कीजिए, 10 साल के बाद आपको 5 लाख रुपया मिलेगा। मैंने सुना है हमारे मौलाना लोग बोलते हैं कि सूद हराम है। तो क्या बोल रहे हैं हाजी साहब, फला मौलाना जो है, फला कासमी है, फला ये है, वो देखिए उनका खाता है, सूद पे चल रहा है। आदमी लोन ले लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। इस्लाम के बारे में जानकारी अच्छे उलमा से लीजिए और जानिए कि ये जायज़ है या नाजायज़ है। लेकिन सूद के बारे में तो सबको पता है, लेकिन फिर भी हम लोग ये काम करते हैं। इससे अल्लाह तबारक व ताला हम लोगों को बचाए। दूसरी बीमारी हमारे मुआशरे के अंदर, बहन का हक मारा जाता है। बहन का हक मार के ज़मीन बेच के हज करने के लिए जाते हैं। जहाँ भी जाइए, जो बूढ़े पुराने लोग, भाई ऐसी ऐसी बात है, फला फला ज़मीन हमारे भाई लोगों ने हमको हिस्सा नहीं दिया। क्या क्या मजाक बना के रखा है इस्लाम को लोगों ने। और फिर वही ज़मीन बेच के हज भी करते हैं, वही ज़मीन बेच के बिल्डिंग बनाते हैं, फिर उसमें नमाज भी पढ़ते हैं। कहाँ से ये सब कबूल होगा? नहीं होगा। मेरे इस्लामी भाइयों, इन चीज़ों से बचना चाहिए। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इसका जवाब अल्लाह ताला के यहाँ देना है। मैं तफसील की तरफ नहीं जाता, बस और एक बीमारी, एक बुराई की तरफ मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये भी बहुत तेज़ी से ये बात फैल रही है। हमने अपने गांव में देखा, हमारे गांव में खुद ये वाक़या हुआ पड़ा है। वो क्या करते हैं, दूसरे का बेटा दूसरे की बेटी को लेके अपने नाम पर, उसको बेटा बेटी लेके अपना नाम उसके साथ लिखा देते हैं। मतलब कि कोई आदमी है जिसका कोई बच्चा नहीं होता है, तो भाई की बेटी या और किसी का बेटा एक ले लिया, और लेने के बाद आधार कार्ड में नाम चेंज करके उसको अपना बेटी बना लिया, यानी वो असली बाप बन गया। वो असली बाप बन गया। आप लोगों को पता है इस मसले के बारे में कि आपने किसी के बेटा को अपना बेटा बनाया, ये तो ठीक है, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट में, उसकी सर्टिफिकेट में, उसके आधार कार्ड में, उसके सारे कागजात में आपका नाम लिखना दुरुस्त है या नहीं है? कितने लोगों को पता है बताइए? किसी को पता नहीं है। कहीं सुने होंगे ये सब बात, लेकिन किसी को पता नहीं है। हराम है, हराम। आप तो मुंह बोला बेटा बना सकते हैं, मुंह बोली बेटी आप बना सकते हैं, परवरिश कर सकते हैं, लेकिन उस बच्चे के साथ उसके असली बाप का नाम रहेगा, उस बेटी बच्ची के साथ उसके असली बाप का नाम रहेगा, आपका नाम नहीं लिखा जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मनिद्दा यला गैर अबी वहुवा यअलमु अन्नहु गैर अबी फल जन्नतु अलैहि हराम। अगर किसी ने इस तरह से काम किया और उसने किसी के बेटा को अपना बेटा बनाया और उसके नाम के साथ अपना नाम जोड़ दिया, बेटी को अपनी बेटी बनाया लेकिन उस बेटी के साथ अपना नाम जोड़ दिया, ये ऐसा करने वाले लोगों के लिए जन्नत हराम है। जन्नत हराम है तो आपको कहाँ जाएंगे? जहन्नम में जाएंगे। दूसरी रिवायत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तरगबू अन आबाइकुम फमन रगबा अन अबीह फकद कफर। यानी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम अपने बाप का इनकार मत करो। ये बच्चे की तरफ निस्बत है, बाप, तुम अपने बाप का इनकार मत करो। इसलिए
کہ اگر کسی نے اپنے باپ کا انکار کیا اور دوسرے کو کاغذی طور پر اپنا باپ بنایا تو اس نے جو ہے کفری والا کام کیا۔ یہ ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، اس سے بھی ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو اس قسم کے بڑے بڑے جرم سے بچا کر رکھے، اور جب تک ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے 5 سے 10 منٹ دیا گیا تھا لیکن 15 منٹ سے زیادہ لے لیا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ یہیں سے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔